Good morning, students. Today we will discuss about how to separate mixture of two immiscible liquids in and different other methods to separate the mixtures. So, what is immiscible liquids? The liquid who do not mix each other. किसको हम immiscible liquid बोलेंगे? The liquid who do not mix each other. So, how to separate two immiscible liquid or how to separate a mixture of two immiscible liquids? Sorry, how to separate a mixture of two immiscible liquids? There are two liquids who are immiscible and are mixture, like water and soil are immiscible liquid. They do not mix each other. So, how to separate water, like a mixture of water and oil, like mixture of petrol and oil? We just use separating funnel. For this reason we just use separating funnel. What do you use? Separating funnel. Separating funnel. To separate the two immiscible liquid, we just use separating funnel like this. Here, this is a separating funnel. In the neck region, in the lower portion, there is a stopcock. There is a stopcock, and the whole portion is called separating funnel. So here there is two liquid, that is kerosene and water. Those liquid whose density is high will remain in the bottom portion, and whose density is low will remain in the higher portion. So we just open the stopcock and allow the water to pass. When the kerosene reach to this portion, up to this portion, that is up to the reach cock, when the kerosene reach to this portion, we will close the stopcock. So now in the beaker we will have water, and in the separating funnel in the kerosene oil. So we will now separate the kerosene and water using this separating funnel. Just we have to open the stopcock and and we have to look the kerosene oil level of kerosene oil. When the kerosene oil reach to the stopcock, we will have to again close the stopcock. So now the water is separated out from kerosene oil. So what is the principle in the separation of immiscible liquid? It depends upon the layers, because they are immiscible liquid, and we will have to observe the layer, and using separating funnel we can separate the both the liquids. Then how can we separate a mixture of salt and camphor? Actually camphor is a volatile substance. Camphor क्या है? Volatile substance means वो easily vapor बन जाता है. Salt जो है solid है. So how can we separate a mixture of salt from camphor? We just take it in a inverted funnel. We just take it in the inverted funnel. Then we apply heat. We just apply simple heat. So we have to put first in the China desk. क्या करेंगे हम लोग? सॉल्ट और कैम्फर को चाइना डेस्क में रख देंगे. उसको क्या करेंगे? फिर उसको गर्म करेंगे. उसमें एक ठो क्या करेंगे? फिर एक ठो इन्वर्टेड फनल ले लेंगे उसको, और उसमें ऊपर कॉटन प्लग डाल देंगे. उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? जो कैम्फर है वो वेपर आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा. जो वेपर्स है वहाँ पे आके अटैच हो जाएगा आपका इन द वॉल ऑफ इन्वर्टेड फनल. सो इन दिस मेथड वी जस्ट evaporate the camphor by applying heat, so that camphor is escaped from the salt. Now the salt is separated from camphor. Then how to separate mixture of two miscible liquids? What is then next? Sorry, if the dye
इज द डाई इन ब्लैक इंक इज ए सिंगल कलर। हमको पूछ रहा है जो ब्लैक इंक है वो सिंगल कलर से बना हुआ है क्या? नो। हम इसको कैसे जान पाएंगे? बाय यूजिंग क्रोमाटोग्राफी पेपर वी कैन यूज दिस एक्सपेरिमेंट, वी कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, वी just put the chromatography paper in the black ink. So after some time we will observe that there is different layers in the chromatography paper. इसमें क्या होता है, क्रोमाटोग्राफी पेपर जो है इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उसको ऑब्जर्व कर लेगा, और जिसका मास जितना ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा, जिसका मास कम होगा ऊपर रहेगा। तो ऐसे में जिसका सेम मास है वो एक लेयर बनाएंगे, जिसका और एक मास है वो अलग लेयर बनाएगा, जिसका मास सबसे कम है वो सबसे ऊपर में रहेगा, जिसका मास सबसे लो है वो नीचे में रहेगा। तो ये दिस इज द टेक्निक टू यूज द सेपरेशन ऑफ कलर। ये जो क्रोमाटोग्राफी पेपर को लेके हम लोग पहले के ज़माने में कलर्स को अलग अलग करते थे। सो व्हाट इज क्रोमाटोग्राफी टेक्निक? क्रोमाटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिजल्व इन द सेम सॉल्वेंट। क्रोमाटोग्राफी से क्या होता है, जो सॉल्यूट डिजल्व हुए हैं सेम सॉल्वेंट में, उसको देखो बहुत सारा सॉल्यूट है एक ही सॉल्वेंट में, तो जब बहुत सारा सॉल्यूट व्हेन सो मेनी सॉल्यूट्स आर डिजल्व इन द सेम सॉल्वेंट, जब बहुत सारा सॉल्यूट एक ही सॉल्वेंट में डिजल्व होंगे तो हम क्रोमाटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमाटोग्राफी? टू सेपरेट आउट कलर्स इन ए डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। And there is experiment in the class 12 in the biology section that using chromatography paper show the different layer present in a लीव्स में जो डिफरेंट पिगमेंट है उसको दिखाने के लिए आपको क्रोमाटोग्राफी का एक एक्सपेरिमेंट है क्लास 12 में। Then how we separate mixture of two miscible liquid? This time we will have to separate the mixture of two miscible liquid. अब हमको क्या करना पड़ेगा? मिक्सचर ऑफ टू सेपरेट लिक्विड, जो लिक्विड मिक्स हुए हैं उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो कैसे सेपरेट करेंगे? फर्स्ट लेट टेक द एग्जांपल ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर बोथ आर miscible mixture. We will have to take them in distillation flask. We will have to, this is called distillation flask, and feed it with a thermometer, This is the distillation flask. So then after we will have to arrange like this, arrange the experimental arrange like this. Here there is mixture of, this is the mixture of acetone and water. This is the clamp, this is the hole is the distillation flask, and in the neck region a thermometer is arranged. This is the water condenser. So we will have to apply temperature slowly. First we have to apply temperature slowly. When what happen now? अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो इमिसिबल लिक्विड का तो क्या होगा, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा, वेपर बन के चला जाएगा इसमें, इसके अंदर से जब यहाँ पहुँचेगा तो फिर लिक्विड बन जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। डिस्टिलेशन में होता क्या है, हम स्लोली टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो जो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो धीरे धीरे वेपर बन जाएगा, फिर वो अगेन कंडेंस होकर लिक्विड बन जाता है। सो टू मिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेट यूजिंग डिस्टिलेशन मेथड। कैसे हम अलग करेंगे? आपका डिस्टिलेशन मेथड को यूज करके टू मिसिबल लिक्विड को अलग करेंगे। इस मेथड को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। एंड दिस इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। जो जैसे कि टू मिसिबल लिक्विड का मिक्सचर है तो उसका डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम उसको डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। तो जो दो लिक्विड है, टू मिसिबल लिक्विड है, उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम 25 केल्विन होना चाहिए। उनके बीच का जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का मिनिमम 25 केल्विन होना चाहिए। और उससे कम हो गया तो आप नहीं कर पाओगे। मीन्स that is the difference between the boiling point of the two liquid must be
25 केल्विन मस्ट। इसमें क्या बताया गया है, मैं उल्टा बोल रहा था। जो जो बॉइलिंग पॉइंट है 25 केल्विन से कम होना चाहिए, उसके बीच डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 केल्विन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू मिसिबल लिक्विड मस्ट नॉट बी मोर देन 25 केल्विन। अगर 25 केल्विन से कम है तो हम लोग फ्रैक्शनल तो क्या होगा, अगर इनके बीच में 25 केल्विन से कम है तो हम क्या करेंगे, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। डिस्टिलेशन मेथड और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब बहुत सारा मिसिबल लिक्विड्स होगा तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले स्किप कर जाएगा, फिर नेक्स्ट जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और सबसे लास्ट में जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो बच जाएगा आपका डिस्टिलेशन फ्लक्स में। जैसे कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर में, जो गैसेस है उसको किस मेथड से अलग निकालते हैं, बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग अलग करते हैं। जैसे फर्स्ट एयर है, एयर में बहुत सारा गैसेस का मिक्सचर है, तो उसको हम कंप्रेस करेंगे बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को लो कर देंगे, तो एयर जो है आपका लिक्विफाइड एयर हो जाएगा। लिक्विफाइड एयर में क्या है, बहुत सारा गैसेस है, तो उसको धीरे धीरे हम लोग गर्म करेंगे, वार्म अप स्लोली इन द डिस्टिलेशन कलम, हम उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे, तो आपका जो है जो डिफरेंट गैसेस है डिफरेंट टेम्परेचर में अलग अलग हो जाएगा। सो गैसेस विल सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, जो आपका गैसेस है अलग अलग हाइट में सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि आपका लिक्विफाइड एयर जो है -183 डिग्री केल्विन में सेपरेट हो जाएगा, -186 केल्विन में जीरो आपका आर्गन अलग हो जाएगा, फिर आपका -196 केल्विन में आपका क्या होगा, फिर नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। जो लिक्विफाइड एयर का ये देखो टेम्परेचर है, ठीक है, याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट लिक्विफाइड एयर का। हाउ कैन यू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होगा, प्योर सॉलिड फॉर्म इसका क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूशन से, उसका क्रिस्टल सॉल्यूशन से हम लोग प्योर सैंपल निकाल पाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इस क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में इम्प्योर सैंपल है तो उसमें हम लोग प्योर सॉलिड निकाल पाएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्या होगा, हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड से जो पूरा इम्प्योरिटीज़ को निकाल देंगे और उससे पूरा सॉलिड, पूरा प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल हमको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपका क्रिस्टलाइजेशन का भी एक्सपेरिमेंट जो है आपका क्लास 12 में है। So why is crystallization? The crystallization method is used to purify solids. हम लोग सॉलिड क्रिस्टल को, हम किसी सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए या तो फिर पूरा प्योर फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। So what is the application of crystallization? Purification of salt that get from the sea water. हम जो सॉल्ट को प्यूरिफाई करते हैं, जो सी वाटर से निकालते हैं, और आपका सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ आलॉम फ्रॉम इम्प्योर सोल्यूशन। आपका फिटकरी का प्योर क्रिस्टल निकालना है तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। Some question, solve this question and send in group all this question. Solve all this question and send in the group. Then आता है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। What are the physical property? Physical property like
कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बोल्टिंग, दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसमें अगर कलर चेंज होता है, शेप साइज चेंज होता है, हार्डनेस चेंज होता है, ठीक है, डेंसिटी चेंज होता है, तो अब इसको बोलेंगे फिजिकल चेंज हुआ है। शेप साइज कलर का चेंज होता है तो उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज हुआ है। आपका कलर चेंज हो गया, हार्डनेस चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, रिजिडिटी चेंज हो गया, तो उसको बोलेंगे फिजिकल चेंजेस हुआ है। तो फिजिकल चेंजेस में होता क्या है? इन फिजिकल चेंजेस देयर इज नो चेंज इन द कॉम्पोजिशन, नो चेंज इन द केमिकल नेचर। तो उसमें फिजिकल चेंज में क्या होता है? उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, उसका इनर कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, या तो फिर उसका केमिकल नेचर चेंज नहीं होता है। जो उसका केमिकल नेचर है वही रहेगा, उसका कॉम्पोजिशन जो है, इनर कॉम्पोजिशन जो है वही चीज रहेगा। दैट इन फिजिकल चेंजेस नो नो कॉम्पोजिशन चेंजेस और देयर इज नो केमिकल चेंज। याद रखिएगा, केमिकल सब्सटेंस का कोई भी केमिकल नेचर चेंज नहीं होता है। फिजिकल चेंजेस में कोई भी केमिकल नेचर चेंज नहीं होगा, या तो फिर उसका इनर कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपका अगर देखा जाए, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर हो रहा है, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? ज़्यादा ठंडा हो गया है तो आइस हो गया है, ठीक है, इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, वही H2O मॉलिक्यूल है, वही H2O है, वही वाटर ही होगा, बस उसका वो फ्रीज हो गया है। ये वाटर लिक्विड फॉर्म है, तो वाटर वेपर फॉर्म, ये गैस बन गया है। उसका इनर कंपोजिशन, इसका केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ है, बस इसमें स्टेट चेंज हुआ है, तो इसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज मीन्स चेंजिंग इट्स कंप्लीट चेंजेस ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। केमिकल चेंज में होता क्या है? इसका पूरा कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। इट्स कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, इट कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। केमिकल चेंजेस से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है? जो रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन कर रहा है, या तो फिर ऑक्सीजन के साथ चेंज कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? आपका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहे हैं। केमिकल चेंज होता है तो वी गेट कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस। इन केमिकल चेंजेस वी गेट ए कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस विच हैज न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें न्यू केमिकल प्रॉपर्टी होगा। और केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट नया रिएक्शन बन, नया सब्सटेंस बन रहा है, तो इसको केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आप लोगों के लिए ये काम है, ठीक है। जो कैंडल जब जलता है तो आपका फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों चेंज होता है। तो कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है मुझे। आप खुद सर्च करो इसको, आप मोबाइल यूज़ करो जो भी, लेकिन आप इसका आंसर भेजिएगा ग्रुप में। देन दिस ऑल्सो, डू दिस ऑल्सो, विच इज केमिकल चेंजेस एंड विच इज pure substance and mixture. Pure substance made up only one type of particle. Pure substance means made up of only one type of particle. If there is only one type of particles, then it is called pure substance. Pure substance is of two types. Pure substance को दो टाइप्स का रहता है। Pure substance जो है it is of two types. एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट और एक कंपाउंड। Pure substance is made up of only one type of particle. What is elements? First thing, who discovered element or who used the term element? First, Robert Boyle, the scientist who used the term element in the year 1661. 1661 में आपका रॉबर्ट बॉयल जो है एलिमेंट का टर्म पहला फर्स्ट टाइम यूज किए थे, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे। और आपके बाद आता है फिर एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है, एंटोनी लेवोसियर को, ठीक है। एंटोनी लेवोसियर भी एक फ्रेंच केमिस्ट थे और उन्होंने फर्स्ट टाइम एलिमेंट का डेफिनेशन दिए थे। एलिमेंट का डेफिनेशन फर्स्ट टाइम कौन दिए थे? आपका एंटोनी लेवोसियर ने। अकॉर्डिंग टू हिम, एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। क्या है? एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल बताता हूँ। आप आयरन का एक पीस काटते हो, आयरन ले लेते हैं और चौक ले लेते हैं,
आयरन, चॉक और आपका कॉपर लेते हैं। मैं बोला कॉपर को 2 टुकड़ा करो, अब भी ये आयरन कहलाएगा और कॉपर कहलाएगा। चलो कॉपर का ही ले रहे हैं, ये कॉपर है, क्या है ये कॉपर है, तो उसको मैं 2 टुकड़े करने के लिए बोला, अब भी ये क्या कॉपर कहलाएगा। उसको 4 टुकड़े करने के लिए बोला, अब भी कॉपर कहलाएगा। फिर इसको उसको मैंने डिवाइड करने के लिए बोला, इन द स्टिल नाउ इट्स कॉपर। आई विल आस्क यू टू डिवाइड इट अप टू व्हाट एवर पॉसिबल। जब तक ये पॉसिबल है तब तक आप इसको डिवाइड करो बोलूँगा, तब भी ये कॉपर कहलाएगा, है ना। तो एक लास्ट में एक ऐसा स्टेज आएगा, आप उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, आप उसको डिवाइड और नहीं कर पाओगे। तो एलिमेंट का मतलब क्या है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम लोग और सिंपल सब्सटेंस में नहीं डिवाइड कर सकते। जैसे कॉपर को और एक ऐसा स्टेज आएगा, यू विल फर्दर कैन नॉट बी एबल टू डिवाइड, आप और डिवाइड नहीं कर पाओगे। और याद रखिएगा एलिमेंट हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मेड अप ऑफ वन सेट ऑफ सब्सटेंस। आपका ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो कि एक ही टाइप का सब्सटेंस से बना रहता है, और उसको लिखेंगे इन द सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म बाय एनी केमिकल रिएक्शन। जैसे कॉपर को हम लोग और चेंज नहीं कर सकते हैं दूसरे में कोई भी केमिकल रिएक्शन करा के, कॉपर ही रहेगा, ठीक है। सो एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय एनी केमिकल रिएक्शन। और एलिमेंट आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर that is made up of only one type of particle. Element are pure form of matter that is made up of only one type of particles, and the particles cannot be break down into simple form. और particle जो है सिंपल फॉर्म में नहीं डिवाइड कर सकते। तो एलिमेंट 3 टाइप्स है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स 3 टाइप्स का रहता है एलिमेंट्स। आप मेटल का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, लस्टेरिया से शाइनिंग करते रहता है, ठीक है उसका, ठीक है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल्स मीन ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल नेचर मतलब क्या है, हम उस मेटल को वायर में खींच सकते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मालेबल प्रॉपर्टी मतलब इफ वी अप्लाई फोर्स दैट विल फॉर्म इनटू शीट्स, दैट विल कन्वर्ट इनटू शीट्स। जब हम मेटल को फोर्स अप्लाई करेंगे तो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग मालेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। दे आर सोनोरस, सोनोरस मीन्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, जब हम उसको हीट करेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये था आपका मेटल का प्रॉपर्टी। अब इसको अच्छे से देखिएगा, आप पढ़ते आ रहे हो इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड बोल दिया। एग्जाम्पल है मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ऑल दिस आर metals, and there is exception, one thing exception, that mercury is the only metal that is liquid at room temperature. मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड रहता है, नहीं तो मर्क्यूरी जो है आपका एलिमेंट ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म और हार्ड फॉर्म में रहते हैं। नॉन मेटल क्या है, दे आर वेरी वेराइटी ऑफ कलर्स, पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस लस्चरस नहीं है, शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, सोनोरस नहीं है, मालेबल नहीं है। लेकिन एक नॉन मेटल है जो लस्चरस है, वो है ग्राफाइट। ग्राफाइट नॉन मेटल होके भी लस्चरस है। तो ये था आपका एलिमेंट के बारे में। स्टिल नाउ 180 एलिमेंट्स आर नोन। 180 कभी कभी आपका मैगजीन में देख जाएगा 190 भी कभी कभी आ जाता है, ये नया डिस्कवर हुआ है बोलिए, लेकिन अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका 180। दो मेटल्स जो है रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड रहता है, दो मेटल्स वो क्या क्या है, मर्क्यूरी और ब्रोमीन जो है ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि आपका लिक्विड रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। कंपाउंड एलिमेंट से कंपाउंड बना रहता है। कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड किससे बना रहता है, आपका एलिमेंट से बना रहता है, 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। द केमिकली कंबाइन विद वन अनदर इन फिक्स प्रोपोर्शन। 2 और मोर एलिमेंट क्या होगा, केमिकली कंबाइन करेंगे एक फिक्स प्रोपोर्शन में और आपका कंपाउंड बनाते हैं। सो 2 और मोर देन 2 मेटल कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म ए कंपाउंड बनाते हैं। 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं और आपका कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है, वाटर एक कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी एक कंपाउंड है। मतलब जो एक और एक से ज़्यादा एलिमेंट बने हैं उसको कंपाउंड बोलते हैं।
देखिए प्योर जो मैटर जो दो टाइप का है, एक मिक्सचर है, और एक प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होगा ये, इसका फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है और मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना रहता है। मिक्सचर जो है फॉर्म ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मतलब, हेटेरोजीनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स रहता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। क्या बताया था एलिमेंट? एलिमेंट इज द सिंपल सब्सटेंस, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू एनी मोर सब्सटेंस। लेकिन दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। दे कैन बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। उसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो हम एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे तो एलिमेंट मिलेगा, लेकिन हम लोग एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर केमिकली कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। इसका एग्जांपल बताया था मैंने, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, मर्क्यूरी, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। कंपाउंड क्या है? वाटर हो गया, मीथेन गैस, शुगर, सॉल्ट, दीज आर कंपाउंड्स। और एक चीज़ बता देता हूँ, कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल से बना रहता है। किससे? मॉलिक्यूल से। तो एलिमेंट जो है आपका एटम से बना रहता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कशन करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे। जितना काम दिया हूँ उसको करो, और एक काम करना, और एक ठो काम, डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड ऑल्सो राइट। डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये तीनों चीज़ लिखना, और जो जो बताया था बीच में उसको भी बनाना और भेजना।